Okay, ma'am. Am I audible to you? Yes, yes, you are. Okay, Yes. ma'am. Okay, thank you, ma'am. So before But we, we can't see your video, Chauhan sir. We can't see okay, your ma'am. video. I'll just put it on. I'll just put it on. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So before we invite our keynote speaker and other eminent dignitaries for their deliberations, at the outset, I would like to tell you that our relationship with Anugraha is 1 year old now. Old relationship. During the past 1 year, this relationship became even more stronger and mature. And we organized 5 events together, including 2 workshops for IRC for and one multi-service camp at ST College. Apart from it, YRC unit of our college regularly organize health checkup camps for senior citizens and various other activities for elderly persons. So these camps and activities are organized in the college campus as well as in our adopted village, Khojkipur, the village which was adopted by our unit in 2017 under the aegis of MHRD Government of India. And above all, our volunteers worked tirelessly for senior citizens during COVID-19 of face mask and sanitizer or free distribution of immunity booster homeopathy medicine in collaboration with the Homeopathy Doctors Association. And it also distributed free Ayurvedic medicines also sponsored by Ayush Department, uh, Ambala district. So, and I feel proud to tell you that our unit has received 2 state awards by Honorable Governor of Haryana at Raj Bhavan, Chandigarh, and for the exemplary work done by the unit in the field of health, education, and social service. So, for all this, the credit goes to our visionary Dr. Rajinder Singh, who is always a great source of inspiration for all the volunteers and also keep his teachers highly motivated for all such activities. And for this event particularly, I'm thankful to Dr. Abha Anugraha, New Delhi. And Dr. Abha very kindly consented to join hands with us for the welfare of senior citizens and sensitize our youth on such a sensitive and significant issue. So thank you very much, ma'am, for being with us today. And we look forward to you for your चौहान साहब, cooperation in आपको future as कुछ well. कुछ शब्द आपको पिछले साल की वॉकाथॉन के बारे में भी बोले होंगे कि आपके रेड क्रॉस ने कितने कमाल का काम किया, आपकी सारी फैकल्टी ने, और आपका वो अनुभव कैसा रहा? Yes, ma'am. It was undoubtedly a wonderful experience because we were doing that activity under the flag of, Ministry of Home. Uh, चौहान साहब, थोड़ा अनम्यूट करिए, आपका म्यूट हो गया है, आपका वो म्यूट हो गया है सर। हाँ जी okay. Yes, जी ma'am. जी जी। So I do remember the day when you first time visited the college campus just to see the ambience of our college, and you were visiting that lawn, and you decided that this is the place where we are going to organize this wonderful event. Because thousands of people we were expecting to visit in that program. So one college, and then all the colleges of the districts joined hands with us. Then the complete state Haryana and all the colleges of Haryana state joined with us. And I know the students and the volunteers from different districts of Haryana, they came to Ambala and participated actively in that activity. So volunteers, still they expect that they should organize together one more such event. And and that was undoubtedly a wonderful experience सर, to एक बार work with कोविड ठीक Anugrah होने in दीजिए, that. सबसे पहले हम अम्बाला ही आएंगे। हमारा एक Yes, ma'am, you are most इंटरजेनरेशनल welcome. मेला, आपको याद है, हमारा मेला भी आपके साथ एक होना था, पर वो Yes, ma'am. बिल्कुल एन वक्त पे हमें रोकना पड़ा क्योंकि इमीडिएटली कर्फ्यू वगैरह लग गया था, मार्च में हमें करना था।
पर ईश्वर की कृपा रही और आप सबकी शुभकामनाएं रही तो हम जरूर इसको अगले साल में जल्दी ही एक बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे और उसमें हम ना केवल कटारिया जी को फिर से लेकर आएंगे पर इस बार अपने केंद्रीय मंत्री जी श्री थावरचंद गहलोत जी को भी डेफिनेटली लेकर आएंगे। Definitely, ma'am. You're most welcome. Thank you, Chauhan sir, for your very illustrious opening address. And now I have great pleasure in inviting Dr. Rajendra Singh ji, who is the principal of SB College. And I think that I want to say briefly, introduce sir, especially for the participants who have joined us from Jammu Kashmir. अम्बाला के तो सभी जानते हैं, सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं एक बात बीच में रोक के बताना चाहूंगी कि कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को प्लीज जरा अनम्यूट ना करें, क्योंकि अगर मैं म्यूट करती हूँ तो सभी म्यूट हो जाते हैं, तो प्लीज जरा अपने आप को खुद आप म्यूटेड रखें तो बेहतर रहेगा। अभी भी पीछे से काफी डिस्टरबेंस आ रही है, मैं अनुग्रह टीम को कहूंगी कि प्लीज जरा म्यूट करते रहें, पीछे से बैकग्राउंड नॉइसेस काफी ज्यादा आ रही है। मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूंगी कि एसडी कॉलेज अम्बाला बहुत ही इलस्ट्रियस और एक एंशिएंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको परिवार की तरह से चलाने का, उसको एक इलस्ट्रियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह चलाने का बीड़ा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी लेके चलते हैं। और मैंने जो सर की कार्यशैली देखी है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, अनुग्रह की टीम ने और मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा कि हाई स्ट्रेस सिचुएशन में भी किस प्रकार से अपना कूल बनाए रखना है, कामनेस बनाए रखनी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बीच में जो बोल रहे हैं प्लीज थोड़ा अपने आप को म्यूटेड रखिए। अनुग्रह टीम इज नॉट एबल टू म्यूट यू, आई एम टेलिंग देम अगेन एंड अगेन टू प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। Now I would request डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, सर आप अपना जो स्पेशल एड्रेस देंगे उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपको एज अ पर्सन हु हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ओल्ड एज केयर में 2-3 चीजें आपका डेफिनेटली ज्यादा सर्कल है, ज्यादा अनुभव है। पर सर मैं ये बताना चाहूंगी कि कोविड से पहले भी वृद्ध लोगों पर अत्याचारों के, दुर्व्यवहार की शिकायतें आती रहती थी, बढ़ती रहती थी। पुलिस अपना रोल करती थी, कानून अपना रोल करता था, पर कोविड होने के बाद जो एक घर में बंद लॉकडाउन की स्थिति आ गई है सीनियर सिटीजन्स के लिए, पिछले कुछ महीनों में वो बिल्कुल एक जेल की तरह से सिचुएशन में रहे हैं। और हमारे को हेल्पलाइन, जो अनुग्रह की हेल्पलाइन है, वैसे भी इतने फोन आए हैं कि प्रॉपर्टी के लिए परेशान कर रहे हैं, हमें कर दिया गया है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये इसमें से बहुत सारे सर सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो फोन यूज करना नहीं जानते या स्मार्टफोन यूज करना नहीं जानते। तो अब ऐसी स्थिति हुई कि जहां बच्चे या बहू या पोते या यूथ घर से बाहर जाते थे लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले, अब एक ही घर में एक ही समय में सब बंद है और पेशेंस कम होती जा रही है, गुस्सा बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है और उसका बहुत सारा जो इम्पैक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स पे आता है, क्योंकि वो बेचारे अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं कोविड की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। तो आज हमारे साथ 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ना केवल अम्बाला के पर बाकी राज्यों से भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि करीबन 25 हमारे ओल्ड एज होम्स हैं उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, वहां के भी जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ आज जुड़े हैं। तो हम बहुत आतुर हैं, उत्सुक हैं आपको सर सुनने के लिए कि एज एन एजुकेशनिस्ट सर आप यूथ का रोल क्या समझते हैं। कानून तो अपना काम सर करेगा, पर डंडे से, भय से हम कितना बुजुर्गों के लिए रिस्पेक्ट ला पाएंगे अपने परिवारों में या यूथ में, ये प्रश्न है सर। तो आई वेलकम यू सर एंड आई इनवाइट यू फॉर गिविंग योर एड्रेस। Thank you, ma'am. Thank you. Am I audible? जी सर, yes sir. Oh, thank you very much, ma'am. First of all, I would like to welcome Dr. Abha Chaudhary, the chairperson, Anugrah,
and Shri M.K. Sharma ji is the Member Secretary, J&K State Legal Service Authority, as well as other dignitaries, senior citizens present in the webinars, and my dear students. Sanatan Dharma, first of all, I would like to introduce about the Sanatan Dharma College. Sanatan Dharma College was established in 1960, 104 years back, at Lahore, presently in Pakistan. After the partition, the college was re-established at Ambala Kent. In 1916, the college was established by none other than the Bharat Ratna Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji at Lahore. After the partition, the college was re-established at Ambala Kent, and its foundation stone at Ambala Kent was laid by the first president of independent India, Dr. Rajendra Prasad ji. तो यदि हम ध्यान से देखें, इस इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया है। हम ये सोच सकते हैं कि 1916 में, आज से 104 साल पहले, जब आप विचार करें कि जिसने भी कितनी विजन के साथ एक कॉलेज खोला होगा, तो आप सोच सकते हैं उनकी क्या विजन होगी। 104 साल पहले तो हम स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बारे में सोचना भी हमारे लिए मुश्किल था। तो इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने में बहुत ही विजनरी लोग इन्वॉल्व रहे हैं। हम लोग तो उनके ड्रीम्स को, उनके एम्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। As far as the college is concerned, ma'am, you have rightly said, मेरी जो टीम है, one of them, आप उनसे मिले हैं, डॉक्टर JD चौहान। They are very dynamic. They are very, very dynamic. Rather, मैं जब भी कोई भी सोशल एक्टिविटीज होती है, मेरे पास जो बेस्ट टीचर्स मेरे इंस्टीट्यूशन के हैं, जो, क्योंकि जब आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लीड करना होता है। और लीड किसे करना है? हमने अपने बच्चों को लीड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें सेंसिटाइज करना है, उनको एक बेटर सिटीजन बनाना है, उन्हें सोसाइटी के साथ जोड़ना है। इसके लिए हमें बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे जो डायनामिक टीचर्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दें, वो आगे आएं। और आई एम वेरी हैप्पी कि जयदीप इज लीडिंग हिज टीम फ्रॉम द फ्रंट, और जयदीप और उसके साथ जितने भी टीचर इन्वॉल्व हैं और जितने भी यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं, हमारे कॉलेज की जो भी एक्टिविटीज होती है, आउटरीच एक्टिविटीज होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ का पार्टिसिपेट करते हैं। As far as today's webinar is concerned, a very serious matter. At least पिछले 30-40 वर्षों से जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी को चेंज आया है, उसके हिसाब से हमें बहुत ही जरूरी है इसके ऊपर मंथन करना, इसके ऊपर सोचना। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द schools also have to think about it. The higher education institutions also have to think upon it. हमें अपने बच्चों को एक बेटर सिटीजन बनाना है। How we can make our children a better citizen? We have to sensitize them. They have to go to the society and serve that society. मैं आपसे एक बेसिक चीज शेयर करना चाहता हूं। जब भी मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, इवन एट दिस एज, जब भी मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा से मैं पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से बात नहीं की, तो मैंने अपने बच्चों को ये जरूर सिखाया है कि वो एक दिन छोड़ के एटलीस्ट जरूर बात करें। यदि मेरे मम्मी पापा का 10 दिन बाद फोन आ गया, इसका मतलब मुझे मालूम पड़ जाता है मेरे बच्चों ने बीच में मिस कर दिया है। तो आप देखें कि जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है, तो मैं अपनी मदर का रोल हमारी फैमिली के अंदर, मेरे फादर का रोल हमारी फैमिली के अंदर याद करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि मेरी मदर ने जब मैं पैदा हुआ होगा मुझे कैसे ग्रो किया होगा, वो छोटी छोटी चीजें मेरे साथ कैसे शेयर करती होंगी, एक माँ एक बच्चे को कैसे बड़ा करती है, कितना सेक्रीफाइस करती है उस बच्चे को ग्रो करने में, इनिशियली 3-4 साल, और उसके बाद जो बच्चा स्कूल जाता है, और एंड एज द चाइल्ड ग्रोज द रोल ऑफ द मदर चेंजेस। अब वो जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, हमें
जब भी मैं ये सोचता हूँ किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे हम इस एज में भी हो गए, हम भी एट दिस एज आल्सो, जब भी हमें ऐसा महसूस करें कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो हम अपने मम्मी पापा को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जरूर याद करें। मैंने तो बहुत सारा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी व्यतीत किया है, तो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा अपनी यदि मैं आज लाइफ के अंदर जिस भी स्टेज पे हूँ, वो मैं उन्हीं की देन हूँ। और यदि मैं आज अपनी टीम को, अपने टीचर्स को लीड करने के लिए मोटिवेट करता हूँ, ये कहता हूँ कि यू शुड वर्क एज ए टीम, नॉट एज ए इंडिविजुअल, तो शायद ये सारा कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के छोटी छोटी बातें शेयर करना, हर बच्चे को खाना, डिनर एटलीस्ट, इफ दे कांट टेक ब्रेकफास्ट और लंच, एटलीस्ट डिनर पूरी फैमिली को इकट्ठे बैठ के ही करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते, यू आर गोइंग इनटू द आइसोलेशन, और ये बहुत बड़ी समस्या होगी। हमारे बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, यूथ के साथ। एक तो जो मोबाइल इज प्लेइंग ए वेरी वेरी नेगेटिव रोल्स। पहले टेलीविजन का नाम लेते थे हम ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मोबाइल एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर तो हमने टोटली बच्चों को आइसोलेशन में डाल दिया है। माई सेल्फ फील इन माई कॉलेज कि 10 बच्चे विद वेरी क्लोज फ्रेंड्स और ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, और अजीब सी बात होती है कि 10 के 10 बच्चे अपने मोबाइल पे बिजी हैं। वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बच्चे कितने ज्यादा आइसोलेशन में जा चुके हैं। और एज के साथ साथ क्या होता है, ये वी ऑल नो इट, दे नीड आवर हेल्प, आवर ग्रैंड पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। हमें हर बच्चे को उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंसिटाइज कर, देयर इज नो अदर मेथड्स, देयर इज नो अदर वे, until unless either we should do practically, जो कि हम अपने हर फैमिली का एक रूल बना लें यदि ऐसा कर पाते हैं, या फिर हमें अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक ऐसी चेंजेस लानी होगी ताकि हम अपने बच्चों को इन चीजों के प्रति सेंसिटाइज कर सकें। यदि हम अपने बच्चों को इन चीजों के लिए सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे, तो ये सोसाइटी टोटल ही बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं अपने बच्चों को एक कई बार एग्जाम्पल भी देता हूं कि मान लीजिए बेटा आप बीमार हो गए हैं, यू आर ऑन द बेड, nobody is going to help you। ये मोबाइल या आपके मोबाइल के जितने भी हैवी फ्रेंड्स हैं, nobody is going to come and help you। your parents, your grandparents will be with you, they are going to share all the things with you। so it is very important कि हमारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हर चीज को शेयर करें, अपनी फैमिली की हर चीज को अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो इस एज के अंदर पहुंच चुके हैं, इस जगह, ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर वो उनको बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती है। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि यदि मेरे को मम्मी या पापा का फोन आया है, इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्टली आई अंडरस्टैंड कि मेरे दोनों बच्चों ने उनको अभी पिछले 2-3 दिन से फोन नहीं किया, इसलिए वो लोग मिस कर रहे हैं। उनको मेरे फोन करने से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको उनके ग्रांड जो सन्स हैं, यदि वो उनको फोन कर लेते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं छोटी छोटी चीजें, ये हम अपने बच्चों को बताते हैं। मेरे यदि फादर हैं तो मेरा सन उनको ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बीबी, पिताजी आप बताएं, आपके पैर में दर्द था, क्या हुआ, गोडे में दर्द था, उसका क्या हुआ, अच्छा आपने क्या खाना खाया है। व्हेन दे स्टार्ट शेयरिंग लाइक दिस, वो आप देखेंगे आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे जस्ट नीड दिस थिंग। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले के और आज के डेट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, आज तो हमारी सोसाइटी के अंदर इतना ज़्यादा है कि बहुत से रिलेशन ही ख़त्म हो गए हैं। बहुत सी फैमिलीज के अंदर वो बुआ, मासी, चाची सारे ख़त्म हो गए हैं, कंसेप्ट ही ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वो जो हमारे इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर जो प्रेशर हमारी सोसाइटी पर पड़ेगा वो और भी ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ के लिए हमें अपने बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रेन करना होगा कि वो बच्चे को एक अच्छे सिटीजन बनाने के लिए, मैं आई एम हाईली थैंकफुल टू मैडम आभा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। क्योंकि हमने पिछले साल जो उनके साथ एक एक्टिविटी की है, और अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स ऑफ माय कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्टिविटीज। और आई थिंक सो दीज आर द प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन विच दे रियलाइज, जहां 2000 एल्डरली लोग आए हैं, 2000 लोग, हमारे 2500 लोग उसके अंदर आए थे,
और सारे बुजुर्ग लोग थे और बच्चों ने किस तरह से उनके साथ पूरा दिन व्यतीत किया। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, माय स्टूडेंट आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश थे। उनको एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। डेफिनेटली इतने बड़े लार्ज स्केल पे हम ऐसा कुछ कर नहीं पा सकते। ये तो इट वाज योर एफर्ट्स कि आपने इतने लोगों को बुलाया है, वहां पर सारी चीजें अरेंज की है। हम तो वहां पर वेन्यू देते थे, वेन्यू दिया हमने आप लोगों को। लेकिन आई वाज सो हैप्पी इन द सेंस कि मेरे बच्चों को कितना बड़ा एक्सपोजर होता है, वो चीज हम नहीं अरेंज कर सकते कॉलेज लेवल पे, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन क्योंकि आपकी जो संस्थाएं हैं सारे एक्सक्लूसिवली आप यू आर डूइंग समथिंग लाइक रिसर्च वर्क ऑन दीज टॉपिक्स, तो आप लोग नई चीजें उसके अंदर लेके आते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि जो ये काम आप लोग कर रहे हैं ये हमारे यूथ तक पहुंचे, हमारे यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। दैट्स वाई मैं अपने टीचर इंचार्जेस को, बच्चों को यही कहता हूँ, नो गो फॉर दीज थिंग्स। हमें जितनी ज्यादा एनजीओज के साथ काम करेंगे, हमारे बच्चों को उतना ही अच्छा एक्सपोजर होगा और लाइफ के अंदर वो उतने अच्छे इंसान बनेंगे। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी एंड ऑल दीज थिंग्स, नो 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 नो। हमारे देश के अंदर बहुत इंजीनियर, डॉक्टर्स है, बहुत सारे लोग हैं। 70 साल के अंदर हम अपनी सोसाइटी को कहां से कहां ले गए हैं, वी ऑल नो इट। और वो इट इज तो व्हाट वी नीड नाउ इज द गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजन्स। वो अच्छा इंसान बनाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो लोग एक्सक्लूसिव इन चीजों पे काम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को एक्सपोजर दें। डेफिनेटली मैं आपसे आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा। बाई कोविड की वजह से बाई चांस हम लोग उसके बाद नहीं मिल पाए, अदरवाइज दैट प्रोग्राम वाज ए वंडरफुल प्रोग्राम। हमारे बच्चों ने 2 दिन, जितने दिन भी आप लोगों के साथ मिलकर वो काम किया। और सबसे बड़ी बात थी कि उन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी, चाहे वो उन एल्डरली लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन जब उनको लेके चलते थे दाएं बाएं, जब उनके साथ उन्होंने चीजें शेयर की तो उनको बहुत अच्छा लगा। वो शायद उन बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस घर के अंदर भी शेयर किया होगा, और शायद ये जो पार्ट था उनका, वो अपनी लाइफ के अंदर जब भी बड़े होंगे, किसी अच्छी जगह जाएंगे, तो वो ये चीज याद रखेंगे कि हमने भी इस तरह की कोई एक्टिविटी की। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग्स। और मैं जयदीप, डॉक्टर जयदीप जो हमारे हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिवली इन चीजों पे काम करते हैं, सोशल एक्टिविटी से के ऊपर। और हम कोशिश भी करते हैं कि सराउंडिंग एरियाज में भी हम काम करें इन चीजों के ऊपर, क्योंकि एक अच्छे इंसान बनाने के लिए जितना भी हम कर सकें, एक बच्चे को भी अच्छी ट्रेनिंग दे पाते हैं और वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा इंसान बनेगा। यही हमारा मेन एम होता है। With these words, I exclusively wants to thanks Dr. Abha ma'am and their Anugrah Center कि उन्होंने हमारे बच्चों को इतना बड़ा एक्सपोजर दिया। और शायद हम अब तक तो बहुत से और प्रोग्राम कर रहे होते, कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम जरूर थी। लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप कोई भी एक्टिविटीज ऑनलाइन करना चाहते हैं, अवर कॉलेज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉलेज डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑनलाइन, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। And once again, on behalf of Sanatan Dharm College, on behalf of my team, and as well as on behalf of my students, I'm highly thankful to you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much, sir. आपने इतनी संक्षिप्त में सारी वो बातें रख दी जो हम एकेडमिक से हटके हैं सर, डेली लाइफ में जो हम मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। और आपने याद दिलवा दी मुझे अपनी ग्रैंड मदर की, बिकॉज आई एम व्हाट शी हैज मेड मी। आई हैव बीन सो क्लोज टू माय नानी। स्कूल से आने के बाद खाना गर्म करना, प्यार से खिलाना, कहानियां सुनाना, और वो जो सर एक अफेक्शन और वो जो संस्कार हमने बचपन से लिए, वो हमें आज वो बनाते हैं। जो भी हम शिखर पे जाते हैं, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, अनुग्रह जो भी हम मिलके चला पा रहे हैं बुजुर्गों की सेवा के लिए, वो उनके आशीर्वाद का, उनके बचपन से जो हमने उनसे सीखा, कहानियां सुनी, गोदी में बैठ के उनसे संस्कार लिए, आई थिंक सर वो मोबाइल कभी नहीं दे सकता, वो गूगल भी कभी नहीं दे सकता। Rightly said that. So I think I request all the students, चाहे अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं या न्यूक्लियर फैमिली में हैं, 2-3 चीजें जरूर गांठ बांध लीजिए। कई बार क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स को अपना बर्थडे याद नहीं होता, तो साल में कोई एक दिन उनका आप याद रखें, उनके लिए केक लेके जाएं, त्योहार जरूर उनके साथ ही मनाएं।
देखिए, उन्होंने सारी उम्र आपके साथ नहीं रहना है, दोस्त तो रहेंगे पर उन्होंने चले जाना है। और अ सेंस ऑफ टच, एक साइकोलॉजी में भी स्टडी हुई है, उनका हाथ जरूर पकड़ के बैठे, उनके गाल पकड़े, उनको कडल करें, उन्हें गले लगाएं। दे डेफिनेटली रिक्वायर दीज थिंग्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। और जो आपको सुकून, प्यार, खुशी, एक सेंस ऑफ इलेशन तब मिलेगी, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड आई से दिस, मतलब मैंने कई रिलीजन्स को कंपेयर करके पढ़ा है कि कहते हैं कि बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है वो बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है और बड़े से बड़ा मुकाम आपको जिंदगी में पहुंचा सकता है, उनका केवल आशीर्वाद। तो उनके साथ हम अब डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू से हमारे साथ श्री MK शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हु इज अ सीनियर जज एंड ही इज ऑल्सो लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सर बहुत बिजी थे, पर मैंने उनको निवेदन किया, रादर पुश ही किया कि नहीं सर आपको जुड़ना है। सैकड़ों स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर मैं बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ हम बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं, श्रीनगर में, जम्मू में। और ये इंडिया की एकमात्र इस प्रकार की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जिसने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में सीनियर सिटीजन्स के डे केयर सेंटर खोले हैं। श्रीनगर में हमने इनके साथ मिलकर सबसे पहला खोला था सर, जब पत्थरबाजी हो रही थी, माहौल बहुत खराब था, पर बुजुर्गों के सेंटर के लिए पूरी कम्युनिटी को कोर्ट ने इकट्ठा करके सर तब दिखाया। अमेजिंग वर्क इज बीइंग डन। कठुआ, सांबा, जम्मू और इंडिया का सबसे ऊंचा डे केयर सेंटर लेह में खोला गया, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और अनुग्रह के जॉइंट कोलैबोरेशन में सर। So these are some of the achievements and I now request श्री MK शर्मा जी, मुझे पता है चीफ जस्टिस मैम का काफी सारा काम लगा हुआ है, आप बहुत मसरूफ भी हैं सर, पर आई वेलकम यू फॉर योर स्पेशल एड्रेस सर। Thank you, ma'am. Thanks for very rich and high words you have spoken for J&K Legal Services Authority. So, good afternoon to everyone. Dr. Abha Chaudhary, Chairperson Anugraha, Dr. Rajinder Singh, Principal ST College, Ambala Kent, Secretaries, District Legal Services Authorities in the UTs of J&K and Ladakh, Dr. J.D. Chauhan, Assistant Professors, ST College, Ambala Kent, Faculty of ST College, Ambala Kent, panel lawyers of J&K and Ladakh Legal Services Authorities, PLVs, students of the college, ladies and gentlemen who have joined through this program. Very good afternoon to all of you. First of all, I must congratulate Dr. Abha Chaudhary for choosing a topic of great importance, that is role of intergenerational bonding for this program. All of us are aware of the fact that we are passing through highly turbulent and testing times when invisible threat to humanity is lurking outside, and law understandably has a vital role to play in framing our responses to the ongoing COVID-19 pandemic. More so, during these times when most of us are working to reinventing ourselves, we also need to reflect over what and who needs our utmost attention and care. Hence, today's program is dedicated to all those who deserve our reverence and respect, but also have every right to live with dignity. Aging is an inevitable process which has been experienced and perceived by mankind from multifarious perspectives: socially, psychologically, physically, philosophically, and so on. Ostensibly, the social, physical, and psychological perspectives on aging have been undergoing substantial transformations over the decades, when aging with dignity, aging with wisdom has moved on to aging with dignity. The reason for this paradigm shift lies in India's success rate in increasing life expectancy, thereby increasing the number of elderly citizens in the country. The share of old persons
aged 60 years and above in the total population is set to rise from 6.9% in 2001 to 12.4% in 2026. When we reflect over this societal evolution, we find that the changing dynamics of family structure gradually relegating the very existence of older people to the margins. In the ancient times, the position of older people in the family structure was supreme, since children treated them with unconditional respect and care. Likewise, grandparents played significant role in passing on their pearls of wisdom to the next generation. Nevertheless, with the emergence of nuclear family system, the sentiments of children towards their parents have also been diluting due to umpteen reasons, be it self-centered approach, unjustifiable ambitions, or others. The growing apathy amongst youngsters towards their parents is one of the fastest emerging trends in Indian society, which is a matter of serious concern. Here the role of state comes into picture. Hubert Humphrey has truly said that moral test of government is how that government treats those who are in the dawn of life, that is the children, those who are in the twilight of life, that is the elderly people, and those who are the shadows of life, that is the sick, the needy, and the handicapped. Professor Roscoe Pound defines right as an interest recognized, protected, and enforced by law. Law is an instrument of social welfare. State and society are composed of human beings. Primarily, human beings must be taken care of by their families. And the families are consisted of children, parents, and grandparents. Undoubtedly, different legislations, welfare schemes, and policies to look after the welfare of old people have been implemented by the government, but there existed a gap in terms of an effective legislation, as there was no special legislation exclusively for senior citizens till 2007. In 2006, on 3rd of March, late Ms. Sushma Swaraj of BJP tried to introduce the bill titled as Senior Citizens Maintenance, Protection and Welfare Bill, but the bill could not proceed further. Thereafter, the Government of India, through its Ministry of Social Justice and Empowerment, through then Minister Srimati Meera Kumar, introduced the bill on 9th of March 2007, titled as the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Bill 2007 in the Lok Sabha. The basic object of the bill of 2007 was to provide effective remedies for the maintenance and welfare of parents and senior citizens. The above referred bill has now become the Act, which received the assent of the President of India on 31st December 2007. However, even after about 13 years of the enactment of this law, we come across different problems and poor condition of aged persons in India. Now the question is, how intergenerational bonding can help in improving the life of senior citizens. While browsing through the net, I came across certain studies which suggest that intergenerational bonding is an alternative to medication for elderly people who are suffering from depression and dementia. Another study revealed that elderly people showed improvement in self-rated mental health and decrease in depression when they were exposed to intergenerational programming. Some studies have shown changes in attitude and perception of elderly people due to the connection with the youth. It is stated that establishing intergenerational relationships allow both the groups to learn about each other, differences and the similarities they have, and that can help in building the relational capacity and a sense of fulfillment. Undoubtedly, senior citizens are the treasure of our society. They are a link of past, present, and future. As they lived their life,
they saw past and pace of progress throughout their life. They are in a better position to evaluate present and predict about the future. They are the senior members of the family who know better about the religion, family history, values, and related customary practices. They possess better understanding of the family values and society. They pass these family values and societal knowledge to the upcoming generations. This was an automatic system of Indian family system to disseminate the past values and knowledge. Young generations, while living in their own ways and style, also kept these values and information and lived their life. This is how our society moved on and shall move further if we build this intergenerational bonding. So I take this opportunity to inform you all about the state of affairs of senior citizens vis-a-vis the aforesaid legislation and the state of erstwhile state of J&K, now UTs of J&K and Ladakh. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, which aimed to provide effective remedies for maintenance and welfare of parents and senior citizens, was not applicable to the erstwhile state of J&K in view of Article 370 of the Constitution of India, as it then was. But in 2014, the erstwhile state of J&K also brought a similar legislation in the state for the welfare of senior citizens. After the reorganization of erstwhile state of J&K, the State Act was repealed and succeeded by the Act of 2007. The Act provides for the establishment of old age homes at accessible places in a phased manner, beginning with at least one in each district. So, till 2018, before, as Madam Dr. Abha Chaudhary has told you, we have set up 5 Ahatavkars, we call it, we have named them as Ahatavkar, these day care recreational centers for senior citizens. They were not in existence till 2018. In August 2018, when Honorable Ms. Justice Geeta Mittal took over as Chief Justice of J&K High Court, followed by Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal's transfer to the High Court of J&K as first junior judge from Punjab and Haryana High Court, and he's taking over as Executive Chairman of J&K State Legal Service Authority in November 2018. The setting up of 5 Ahatavkar in a span of around 2 years in Jammu and Kashmir and Ladakh may be seen as a small step for man, but a giant leap for mankind. I had the occasion to visit Ahatavkar at Jammu on few occasions, and I could personally see the change in attitude and perception of the senior citizens who visit this daycare recreational center, where they are engaged in several social activities with members of civil society and students. Similar reports have been received from other recreational centers also. They are celebrating all the important days in their recreational centers. They celebrate the birthday of the senior citizens by gathering together. And I must congratulate and thank Dr. Abha Chaudhary for organizing such an event of intergenerational bonding, because unless we have this kind of bonding between the generations, that older and the youth, we cannot achieve the desired results of the legislations enacted by the government. I am confident that today's deliberations will make each and every one of us more sensitive to the needs of older people in and around them. With this, I once again thank Dr. Abha Chaudhary for inviting me to deliver this talk. I also thank all the participants for giving me a patient hearing. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for taking out your time and giving a very, very comprehensive background to the entire topic. Sir, एक बीच में क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, आपके PLV हैं मोहम्मद रफी डर साहब फ्रॉम कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर. उन्होंने एक ये चीज कही है कि all paralegal volunteers should conduct door-to-door campaign to find out the problems faced by elderly people so that they do not suffer. Old age pension is being provided to old persons, but they should be able to furnish the report. The PLVs should help in furnishing the report if any old person is not getting any pension.
Secondly, they should be able to report the harassment by children. So it is requested to Member Secretary Sir JKSLSA to order the PLVs for the same. Sir, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये PLVs का अदरवाइज भी आई शुड से दे हैव दिस जॉब ओनली कि लोगों की जो किसी को कोई प्रॉब्लम है, लीगल प्रॉब्लम है, उसको बताना, उसको गाइड करना, और जो इनकी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेशली वी आर टॉकिंग ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर किसी समबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ दो स्कीम्स तो उसको एजुकेट करना, उसकी हेल्प करना, उसका जो फॉर्म कोई फिलअप करना है वो फिलअप करवा के कंसर्न ऑफिस तक पहुंचाना, एंड उसको फॉलो अप करके इंश्योर करना कि दैट ही कैन reap the fruits of that scheme or legislation which has been formulated by the government for the benefit of senior citizens. So this is primarily the job of PLBs. They are doing it, and I don't know what kind of directions he is asking from the Legal Service Authority. He is at liberty to approach and to seek to help the senior citizens if they are in need of any kind of such help. Regarding the other query he is making कि अगर किसी को प्रॉब्लम है अपने बच्चों के, if somebody is being harassed by his family members or children or there are evidence कि उसको गाइड करना चाहिए. हमारे लीगल यूनिट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में, they can guide them to those places so that वहाँ से उनको लीगल हेल्प दी जा सके. किसी को कोई पिटीशन फाइल करनी है फॉर ग्रांट ऑफ मेंटेनेंस या कोई प्रोटेक्शन चाहिए है तो उसके लिए वो प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो हमारे पैनल लॉयर्स वो वहाँ कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो भी जिसकी जुरिस्डिक्शन है वहाँ फाइल करके तो उनको रेमेडी. मैं सर आपको याद होगा कि जब ये जैसे ही लॉकडाउन लगा था मार्च में तो आपकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स ने, आपको याद होगा सभी PLVs ने लिस्ट ऑफ नीडी विडोज भी बनाई थी सर. जी जी जी. We got a list from all the districts. करीबन 486 नीडी एल्डरली विडोज का डेटा हमारे पास आया था और हमने फिर वो कंपाइल करके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में दिया था कि उनकी जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है और जो सरकार ने अनाउंस किया था कि 1000 रुपीज दिए जाएंगे अकाउंट में लॉकडाउन के टाइम में, खास करके बुजुर्ग महिलाओं को, तो वो भी प्रक्रिया हमने आपकी मदद से ही की थी सर. और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने फिर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी वो सारी जानकारी सर भेजी थी सर. जी जी जी. So that was done by PLBs only. Yes sir, yes sir. They are already doing this job. Yes sir, yes sir, yes sir. सर मैं आपको चाहूंगी, थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ समय और थोड़ा सा बने रहिए. मैं Yes, अभी सारे दो बस थोड़े से मिनट सर, थोड़ा सा बस 5 मिनट. आई जस्ट वांट टू आस्क एनी स्टूडेंट्स, अगर आपके या PLVs के लॉयर्स के अगर शर्मा सर से रिलेटेड कुछ लीगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाएं और कुछ जानकारी दे सकते हैं हम. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनी PLVs, यू हैव जॉइंड अस फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप शर्मा सर से पूछ सकते हैं. जी, यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज. देवेंद्र राणा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? देवेंद्र राणा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो मैम. हाँ, आशियाना खान जी. अच्छा, गुड आफ्टरनून. हाँ गुड आफ्टरनून, कहिए. हाँ, मुझे ये जानना था कि जैसे कि ये लिखा हुआ कि ये A to J का एंड हो रहा है मार्च में, तो A to J का A to J क्या होता है? A to J Access to justice. अच्छा, A to J, अच्छा, एक्सेस टू जस्टिस. ओके ओके. तो मैम क्या आगे कुछ इसका मतलब कोई है कि बेटा मे आई नो हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं आशियाना पुंछ. हाँ बेटा, ये बेसिकली दिस इज A to J इज ए प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
इसमें उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने कुछ क्लिनिक्स 50 वी हैव ओपन 50 लीगल एड क्लिनिक्स इन यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख एंड हैव अपॉइंटेड 50 दोज PLVs आल्सो। तो ये प्रोजेक्ट मार्च में, आप ठीक कह रहे हो रहा है, इसकी डेट एक्सपायर हो रही है, पहले भी आगे एक्सटेंड हो गया था। एज ऑन टुडे वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, अभी तक हमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही अगर एक्सटेंड होता है तो आपको बता देंगे हम, ठीक है? राइट। अगर सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, अगर किसी भी यूथ के, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, अगर आप चाहें तो सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सर के पास रियली लिमिटेड टाइम है। बहुत रिक्वेस्ट करके सर यहाँ आए हैं। एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज, यू आर वेलकम। आई थिंक सर अभी मुझे लगता है शायद नहीं है क्वेश्चंस, तो सर आई ऑन बिहाफ ऑफ my entire team, I thank you, extend my gratitude to you that despite your so much busy schedule, आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आपने आज पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच सर। It's always pleasure working with you, and in fact, So we have around 150 students and legal persons have joined from different parts of India, sir. yes, that's जी very sir. good. Yes Thank sir. you very much. Thank you. Right sir. Thank you. Okay. Now, for the benefit of all the participants, I request Anugrah team to please mute everybody. I am just showing you a very brief presentation on today's topic. And before I show you the presentation, there is a small video which is showing the complete position of senior citizens and the Maintenance Act.
मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से निवेदन करूंगी कि बस 4-5 मिनट का समय और है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो मेंटेनेंस एक्ट और सीनियर सिटीजन्स की कंडीशन पे हम आपको दिखाना चाह रहे थे, और कार्यक्रम का जो अंत है तो वो हम करेंगे एक बहुत ही रोचक वीडियो से, बेहद रोचक वीडियो से। जो कार्यक्रम हम दिल्ली में चला रहे हैं सीनियर सिटीजन्स का, वो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। एक पॉजिटिव नोट पे, एक सकारात्मकता पे हम ये कार्यक्रम आज का खत्म करते हैं। तो कृपया जुड़े रहिए और बहुत जल्दी लॉग आउट मत करिए, क्योंकि सिर्फ 4 मिनट का ही प्रोग्राम है। कवर होता
Yes, I think due to some connection problem, I think it just stopped in between. But nevertheless, I think we will be हमारे साथ आई एम हैप्पी कि इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के स्वाभिमान परिसर के काफी सारे सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े हुए हैं एंड दे आर सो एक्साइटेड टू सी देमसेल्व्स अगेन ऑन द वीडियो. एक इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है मौज मस्ती. तो आप ये देखिए कि हमारे सीनियर सिटीजन्स यूथ के साथ मिलके किस प्रकार की मौज मस्ती भी करते हैं. सीरियस बातों को अब हम विराम देंगे और थोड़े से एंड करने से पहले हम आपको एक ग्लिम्स दिखाएंगे कि हमारे दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स यूथ के साथ मिलके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मिलके किस प्रकार के काम करते हैं. So, friends, this was the last presentation that we wanted to show you. And राकेश कुमार सेठी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ आप हमारे को देख पा रहे हैं. And lot of other senior citizens are also remembering. ये प्री कोविड टाइम का हमारा वीडियो है. 20 फरवरी को हमने यहाँ इंटरजेनरेशनल मेला किया था दिल्ली में स्वाभिमान परिसर में. और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जल्दी से पैंडेमिक खत्म हो और हम फिर से इस प्रकार का इंटरजेनरेशनल मेला ना केवल दिल्ली में करें, अंबाला में बहुत खूबसूरत एसडी कॉलेज का ग्राउंड है, वहां पर भी करें. और जम्मू कश्मीर, पुलवामा, कठुआ, कितनी जगह से हमारे साथ इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं. आप सभी का धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े. थैंक यू सो मच. कीप सेफ. और चैट बॉक्स में हमारी टीम ने अनुग्रह के नंबर्स डाले हुए हैं, फेसबुक, यूट्यूब,
all the links of Instagram they have been put. So आशियाना जी थैंक्स कह रही हैं, मैं भी सबका थैंक्स कहना चाह रही हूँ। ये इंटरनेट की वजह से हमारी दूरियां कुछ कम भी हो गई हैं। अनुग्रह टीम का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, NISD का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए जुड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज, गुड डे, थैंक यू।